Hello students, good morning all of you. Today I will discuss about our chapter number 6 MCQ revisions. MCQ क्वेश्चंस का रिवाइज करेंगे हम. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे. An angles whose measure is 5 times of its complementary angle in the given y. सो आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल फाइंड आउट करना है. सो इसके लिए क्या करेंगे? लेट एंगल इज x. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x फाइंड आउट कर लीजिए. complement of x equals to 90 minus x, because sum of two angles is 90, called complementary angles. So one is x, then other is 90 minus x. Now by given condition, an angle, यानी it means x is equals to 5 times of its complement. इसके complement के 5 times के equal है. So 5 in bracket 90 minus x. Now open the bracket, multiply by 5. 5 9 जा 45, 450 एंड 5 को x से मल्टीप्लाई कीजिए. 5x ट्रांसफर माइनस 5x इन लेफ्ट हैंड साइड, प्लस हो जाएगा यहाँ पे. देन इज इक्वल्स टू 450. सो दिस इम्प्लाइज 6x इज इक्वल्स टू 450. देन x इज इक्वल्स टू 450 डिवाइड बाई 6. यू कैंसिल बाई 6 है. 6 1 जा 6 है, 6 7 जा 42 and 6 5 ja 30, which is equals to 75 degree. So angle is 75 degree. Question number second. An angle whose supplement is 6 times its complement. यानी आपको एंगल, जो एंगल आप पुट करेंगे उसकी सप्लीमेंट ऑफ एंगल फाइंड आउट कीजिए और उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल्स फाइंड आउट करेंगे आप. सो सेम एज इट इज, लेट एन angle is equals to x. So complement of x is equals to 90 minus x, and supplement of x is equals to 180 minus x. Complement sum of two angles is 90. Supplement means sum of two angles is 180. So one is x, then other is 180 minus x. Okay, now by given condition, an angle whose supplement is 6 times, उसका supplement 6 times equal है its complement. ओके, इस एंगल का जो सप्लीमेंट है यानी कि 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. इट मीन्स यू मल्टीप्लाई बाय 6 कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स. नाउ ओपन द ब्रैकेट. सॉलिड 6 9 जा 54, 540 माइनस में 6x, ट्रांसफर माइनस 6x, इट इज़ प्लस, एंड 540 माइनस में 180, देन वी गेट 360. सो हियर इज लेफ्ट 5x इज इक्वल्स टू 360, देन x इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 5, कैंसिल बाई 5, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, we get 72 degree. Hence angle is 70 degree. So our option is B. Okay, now question number 3. The sum of the two adjacent angle is 110 and one of them is 35 degree, then other. So आपको क्या करना है? 110 में से 35 माइनस कर देंगे आप, अदर एंगल आपके पास आ जाएगा. now question number 4. you have to given a figure. POQ is a line. The value of x. POQ is a line, so it is a straight line. So it means sum of all three angles is 180. इन तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा. 40 प्लस 4x प्लस 3x is equals to 180 degree, because POQ is a straight line. POQ is a straight line. Okay, now find out x from here. 4x and 3x plus 7x, transfer 40 in right hand side minus 40, then 7x is equals to 140. so we get x is equals to 140 divided by 7, cancel by 7, 7 to ja 14, 20 degree. Value of x is 20 degree. So our right option is 20, which is first option. Now in next question number 5, you have to given a figure. X, Y and YZ are two intersecting lines.
एंगल एक्स ओ जेड प्लस वाई ओ टी, एक्स ओ जेड एंड वाई ओ टी, इन दोनों एंगल्स का सम 266 गिवन है बिकॉज दीज आर वर्टिकली, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो हियर इज जेड टी एक्स एंड ओ वाई, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 266 है. सो एंगल एक्स ओ जेड प्लस एंगल वाई ओ टी is equals to 266, but these are equal, both are equal, so it means you divide by 2, angle XOZ is equals to angle YOT because vertically opposite angle, so you replace XOZ in YOT, so angle YOT plus angle YOT is equals to 266. Now it is twice of angle YOT is equals to 266, then angle YOT is equals to 266 divided by 2, cancel by 2, 2 1 ja 2, 2 3 ja 6, 2 3 ja 6, we get 133 degree. So angle YOT क्या गया 133 degree, this is also 133 degree. Now find out angle XOT, XOT हमें find out करना है, this is point O, XOT ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है. सो यहाँ से क्या करेंगे 180 में से माइनस कर दीजिए, एंगल एक्स ओ टी इज इक्वल्स टू 180 माइनस में 133 लीनियर पेयर की वजह, बिकॉज इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180, सो बाय लीनियर पेयर 10 minus 3 is 7, here is left 7, 7 minus 3 is 4, 47 degree. So our right option is C. C is right option. Now our sixth question, in the adjoining figure, if AB parallels to CD, CD parallels to EF, and PQ parallels to RS, angle RQD is equals to 25 and angle CQP is 60 degree, then find out angle QRS. This is the given figure. आपको यहाँ से एंगल QRS फाइंड आउट करना. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द गिवन फिगर. हमें यहाँ से एंगल QRS फाइंड आउट करना है, ये एंगल आपको कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करना. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट प्रोड्यूस एस आर को प्रोड्यूस कर दीजिए एंड पी क्यू प्रोड्यूस, इसको भी आप प्रोड्यूस कर देंगे. ओके, इस तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो पी क्यू एंड आर एस गिवन पैरेलल्स है, पी क्यू पैरेलल्स टू आर एस. सो पैरेलल लाइंस को जो व्हेन यू प्रोड्यूस देन वे दीज आल्सो पैरेलल. दिस इज 25, ये एंगल जो है आपके पास 25 है. यू फाइंड आउट दिस एंगल, एंगल सी क्यू, here is given name एनी जी डाल दीजिए आप. ओके, सो एंगल सी क्यू जी क्या आ जाएगा, माइनस 180 में से 60, सो एंगल सी क्यू जी इज इक्वल्स टू 180 माइनस में 60 डिग्री, देन वी गेट 120 डिग्री. ओके, सो दिस इज 120 and these are alternate interior, it is also 120 degree. एंगल यहाँ से ये जो एंगल्स है ये 120 आ जाएगा. सो ये 120 है तो ये आपका जो एंगल्स है ये भी 120 हो जाएगा बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 120 डिग्री. ये जो एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 25 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो क्यू आर एस क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल क्यू आर एस इज टू आ जाएगा 120 प्लस 25, 120 plus 25. Okay, then we get 145. Now question number 7, in the adjoining figure AB parallels to CD and EF parallels to CD, then Y ratio Z is equals to 3:7, then the value of X आपको फाइंड आउट करना है. सो ये आपका NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी सेम ऐसी, एंगल X is equals to Z because alternate interior angles, and angle x plus y is equals to 180. Okay, so you have to give angle y ratio z is equals to 3:7. So it means
एंगल y इज इक्वल टू 3x एंड z इज 3a के अंदर रखिए आप, एंड z इज इक्वल टू 7। एंगल x इज इक्वल टू एंगल z because alternate interior angle, okay, and angle x plus y is equal to 180 because co-interior angles. सो यहाँ पे आप इन दोनों को रिप्लेस कर दीजिए, x और y दोनों इक्वल है आपके पास, x इज इक्वल टू z, सो z इज 7a, सो वैल्यू ऑफ x क्या पुट कर सकते हैं आप 7a एंड y इज इक्वल टू 3a. नाउ फाइंड आउट फ्रॉम हियर a, so 7a plus 3a is 10a is equals to 180, then a is equals to 180 divided by 10, cancel by 0, then we get 18 degree. Okay, value of a is 18. Then find out value of x. So value of x क्या आएगी, x is equals to z and z is equals to क्या आ जाएगा आपके पास 18 into में 7. So 7 8 जा 56, carry 5, 7 1 जा 7 और 5 12. So we get 126 degree. Then value of x are also 126 degree because both are equal because alternate interior angles. Now our question number 8 is the exterior angle of a triangle is 155 degree and one of the interior opposite angle is 55. Then find the interior opposite angles. हमें interior other interior opposite angle find out करना है. सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी. दिस इज ए ट्राइंगल से ए बी सी, इट्स एक्सटीरियर एंगल इज गिवन विच इज 155 डिग्री एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल्स का जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है ए एंड बी, सो वन इज गिवन 55 डिग्री. देन फाइंड द अदर. सो अदर आपको x पुट कर लीजिए. सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट, इट मीन्स x प्लस में 55 डिग्री, यू पुट अदर एंगल इज इक्वल्स टू x. ओके, सो x प्लस 55 इज इक्वल्स टू 155 डिग्री, देन x इज इक्वल्स टू 155 इज माइनस 55 डिग्री, we get 100 degree. Okay, so other angle is 100 degree. So right option is D. D is the right option. Now question number 9. If one angle of a triangle is equals to the sum of the other two angles, then the triangle is, ट्राइंगल क्या बनेगी, एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगा या राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा या एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. If one angle of a triangle is equals to the sum of the other two के सम की इक्वल है, तो देखिए यहाँ पे आप ये रखेंगे one angle is equals to, it means angle A is equals to angle B plus angle C, it is given. Now sum of three angles is 180 of a triangle, it is angle sum property. Now replace angle B plus C in A. B plus C को किस में रिप्लेस कर देंगे आप, A के अंदर, बिकॉज बी प्लस सी इजकल्स टू ए, एंगल ए प्लस एंगल ए, इसको ए में रिप्लेस किया आपने, इजकल्स टू 180. एंगल ए प्लस ए ट्वाइस ऑफ एंगल ए इजकल्स टू 180, देन एंगल ए इजकल्स टू 180 डिवाइड बाई 2, कैंसिल बाई 2, वी गेट 90 डिग्री. सो इट मीन्स ए इज 90. अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 है, सो इट मीन्स इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल. सो आपकी ये क्या बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल. सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, बी इज राइट ऑप्शन. इन द एडजॉइनिंग फिगर क्वेश्चन नंबर 10, इफ क्यू पी पैरेलल टू आर टी देन फाइंड आउट एक्स. क्यू पी पैरेलल टू आर टी, ये दोनों पैरेलल्स गिवन है, हमें एक्स फाइंड आउट करना है. ओके, सो ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये 65 आ जाएगा, फिर हम तीनों एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यहाँ से आपके पास इस तरीके से फिगर गिवन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल्स हैं, P Q R, here is point T, this is 65 degree, so this is also 65 corresponding angle. Here is point X and here is 40 degree.
सो यहाँ से आप x फाइंड आउट कर सकते हैं, x प्लस 40 प्लस 65 इजकल्स टू 180। ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सो इसलिए इक्वल हो गया। नाउ फाइंड आउट x फ्रॉम ईयर। सो यहाँ से वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी, 75 डिग्री। हैंस द सॉल्यूशन। थैंक यू।